डिप्टी आर्मी चीफ ने अब चीन और तुर्की को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए ये बात साफ तौर पर कही कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि 3 देशों को हराया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया, जिसके बाद इस बयान की चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है और उनके इस बयान के बाद प्रतिक्रियाओं की बाढ़ देखने के लिए मिली है। क्या कुछ है पूरा माजरा, क्या कहा है उन्होंने, विस्तार से जानिए। तो ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 2 महीने का समय हो गया है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कुछ ना कुछ जानकारी सामने आ रही है। अब डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने राजधानी नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि बेशक भारत पश्चिमी सीमा पर एक दुश्मन से लड़ रहा था, लेकिन वास्तव में हकीकत यह है कि वो 3 विरोधियों का सामना कर रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे सामने था, यानी फ्रंट पे था, चीन उसे हर संभव मदद पहुंचा रहा था। इस दौरान जो सबसे खास बात उन्होंने बताई वो ये थी कि जब पाकिस्तान के साथ डीजीएमओ लेवल की बातचीत चल रही थी, तब उसे भारत के महत्वपूर्ण वेक्टर्स की जानकारी थी। ये जानकारी उसे चीन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थी। उन्होंने कहा कि हमें इस पर तेजी से काम करना होगा। हमें एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की और ज्यादा जरूरत है। उन्होंने इस दौरान जो है पोल खोलते हुए बताया कि पाकिस्तान के पास उसके मिलिट्री हार्डवेयर का 81% जो है, यानी 81% जो है वो चाइनीज है, यानी चाइना का सामान है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष में चीन अपने हथियारों का अन्य वेपन सिस्टम के सामने टेस्ट करने में सक्षम रहा और इसीलिए वो उनके लिए एक लाइव लैब की तरह रहा। तुर्की ने भी उसे हर तरह की सपोर्ट दी। तुर्की ने संघर्ष के दौरान उन्हें न सिर्फ ड्रोन बल्कि प्रशिक्षित यानी ट्रेंड लोगों के जरिए भी मदद दी थी। क्या कुछ कह रही है राहुल सिंह, जरा सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर, the defining thing was that leadership, the strategic messaging by leadership was unambiguous. You cross our red lines and there would be action. There would be punitive action if required. There is no scope of absorbing the pain the way we did a few years ago. So that is one important message that stands out loud and clear. Second, as far as Operation Sindoor was concerned, the planning and selection of targets was based on a lot of data that was collected, using technology and I would say human intelligence. So a total of 21 targets were actually sort of identified, out of which 9 targets we thought would be prudent to engage. When we looked at those 9 targets, and it was not that the 9 targets that we decided upon was a decision which did not change. Till the last day, the targets, there was eye on the targets that were there, and we kept monitoring the locations. It was only on the final day or the final hour that the decision was taken that these 9 targets would be engaged. A considered decision was taken. It will be a tri-services approach to send the right message that we indeed are an integrated force. So, Army, Navy, Air Force all played their part as far as targeting was concerned. We saw various, or we are seeing various conflicts playing out. So an important consideration was that we should always be on top of the escalation ladder. When we reach our political military objective, we should try and put a stop to it. So a lot of naysayers say, why did we stop now? So war is easy to initiate, but it's very difficult to control. So I would say that was a very masterly stroke that was played to stop the war at an appropriate time. And this time, when the target engagement started, how we controlled the escalation, it was only the terrorist targets that were engaged in the first stage and information warfare. A message was sent that we have only engaged your militant targets, the terrorist targets, we would like to put an end to it. However, Pakistani side decided that no, they wanted to, sort of
come equal. They engaged our military targets. So in step 2 of the escalation, a very strong message was sent by engaging their military targets in a manner that on 10th of May, there was a message from the military operations, Pakistan, that they would want a ceasefire. Of course, we completed our missions to ensure that we end the conflict on top of the escalation ladder. And thereafter, of course, it is all about information warfare, how the narrative shape out. That's another domain that could be discussed. And the reason why this particular thing happened, because there was a punch that was ready, and they realized that hidden punch, in case that comes through, Pakistan would be in a very, very bad condition. So that was the reason why they asked for a ceasefire. Of course, another important thing during Op Sindoor was air defense and how it panned out. So it is good, bad. We could do a lot. Mr. Ashok did talk about it, that some of our indigenous systems performed well, some did not perform very well too. So it's of course a cat and mouse game, as I was mentioning outside. We need to be at it. This time, thankfully, our population centers were not quite addressed. In the next round, we had to be prepared for that, and for that, more and more air defense, more and more counter rocket, artillery, drone sort of a system has to be prepared, for which we have to move very, very fast. So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise, because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. The next important lesson is the importance of C4 ISR and civil military fusion. There is a lot to be done as far as this domain is concerned. When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारी लीडरशिप की तरफ से स्ट्रैटेजिक मैनेजिंग बहुत स्पष्ट थी। कुछ साल पहले की तरह इस दर्द को सहने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा टारगेट चुने जाने की प्लानिंग, सिलेक्शन बहुत सारे डाटा पर बेस थी, जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जमा किया गया था। उन्होंने कहा कि कुल 21 टारगेट की पहचान की गई, जिनमें से 9 टारगेट पर हमने सोचा कि उन्हें निशाना बनाना समझदारी होगी। अंतिम दिन या अंतिम घंटे पर फैसला लिया गया कि 9 टारगेट्स पर हमें हमला करना होगा। एक सोचा समझा फैसला था। उपसेना प्रमुख ने कहा कि एक महत्वपूर्ण विचार ये थे कि हमें हमेशा एस्केलेशन लैडर के टॉप पर रहना चाहिए। जब हम किसी मिलिट्री टारगेट तक पहुंचते हैं तो हमें इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। इसलिए मैं कहूंगा कि यह बहुत ही शानदार चाल थी, जो उचित समय पर युद्ध को रोकने के लिए
खेली गई थी। वहीं आपको बता दें कि अब उनके इस बयान के बाद से लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने को मिला है। जीडी बख्शी क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। देखिए, बहुत नापातुला बयान है। उन्होंने कहा कि इस बार पाकिस्तान जो है हमारे बिल्कुल पॉपुलेशन सेंटर्स को छू नहीं पाया, कोई बम नहीं गिरा, कोई कुछ नहीं हुआ, जबकि हमने उसके लाहौर, सियालकोट, मुरीद के, भावलपुर ये शहरों के बीचों बीच 9 टेररिस्ट ठिकाने ठोक दी। ठीक है, तो क्वाइट ऑब्वियसली वो उन्होंने सही कहा है कि चाइना 81% हथियार उनके चाइना ओरिजिन के हैं। चाइना अपने हथियार फ्री में टेस्ट करवा रहा है यहाँ एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स के बरखिलाफ। तो हमको ये देखना था कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, अगले राउंड के लिए हमको बिल्कुल तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि भाई 21 टारगेट्स थी टेरर, हमने केवल 9 एड्रेस करी थी, तो बाकी छूट गई हैं, उनको हम एड्रेस करने वाले थे लेकिन सीज फायर आ गया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने बड़े स्मार्टली ओपन एंडेड वॉर में नहीं फंसे और हमने जल्द से जल्द सीज फायर कर दिया। मेरा सिर्फ कहना है कि 1-2 दिन और भी चल जाता तो कोई नो हेवन और वुड हैव फॉलन और अच्छा नुकसान हो जाता, क्योंकि हमने बिल्कुल एयर डोमिनेंस गेन कर ली थी। हमारा टोटल एयर सुपीरियरिटी थी ओवर द स्काईज ऑफ पाकिस्तान। तो अच्छी तरह से जो बची खुची टारगेट्स थी उनको भी ना था 2 दिन तक या 3 दिन तक। तो जैसे कि आपने जीडी बख्शी का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत सोची समझी रणनीति थी, बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने काम किया। जैसा कि बताया गया कि टारगेट हमने चुन रखे थे, टारगेट के अकॉर्डिंगली जो हमने काम किया। वह इस मामले पर डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौर का भी बयान है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। देखिए, पाकिस्तान जो है खुद ब खुद तो उसके पास आपको पता है कि ना उसके पास पैसा है कोई हथियार खरीदने के लिए, ना उसके पास और कोई ऐसा उसकी इंडस्ट्री है कि वो हथियार बना सके। तो वो हथियार जो हैं उसके या तो अमेरिका से आ रहे हैं या चीन से आ रहे हैं। अमेरिका के जो हथियार हैं उसके ऊपर तो उन्होंने पाबंदी लगाई है कि कहीं वो जो जैसे उन्होंने F-16 वगैरह दिए हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते, और कहीं पे भी अगर अमेरिकन इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है किसी के खिलाफ पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती है। तो चीन रह गया, चीन इसमें अपना मफाद देख रहा है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करके, क्योंकि चीन ने उनको काफ़ी जो है एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, बाकी जो है अभी वो नेवी के फ्रिगेट्स वगैरह भी दे रहा है उनको, काफ़ी उन्हें पनडुब्बियां भी दे रहा है उसको। उसका मकसद ये है कि देखिए ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है ये चीन पाकिस्तान के अंदर, वो उसके अंदर इतने $1 बिलियन उसने खर्च दिए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि उसको पता है पाकिस्तान जो है वो एक भिखारी नेशन है और जल्द ही वो बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। तो वो चीन का 5th प्रोविंस बड़े आराम से बन सकता है, क्योंकि और कोई तरीका रहेगा नहीं उसके बाद। जैसे आपने देखा कि श्रीलंका ने अपना पोर्ट दे दिया, बाकी जो है देश जिनका कर्जा हो गया था चीन के साथ उन्होंने भी अपनी जगह दे दी कि हाँ जी आप 100 साल तक इसको कर ले। वही हाल पाकिस्तान का होने वाला है। अब रहेगी बात तुर्की की। तुर्की में जो एक प्रॉब्लम है वो जो एर्डोगन है वो अपने आप को खलीफा मान रहे हैं कि मैं जी मुस्लिम ममालिक का जो है खलीफा, जो ऑटोमन एम्पायर का जो कैलिफेट होता था वो वापस उसको रिस्टोर करने के चक्कर में है। और वो रेस्टोरेशन किस तरीके से है कि वो जो देश हैं उनको अपने ड्रोन या उनके वो दूसरी चीजें जो हैं वो दे रहे हैं। तो ये जो चीज है ये हमें पता है। अब पता होने के बाद में ऐसा होता है ना, देखिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि दुश्मन क्या कर रहा है तो आप उसके काउंटर मेजर ले सकते हैं, और हिंदुस्तान में हम काउंटर मेजर ले रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि जो हमारे जो अपना पॉलिसी बन रही है और जिस हिसाब से हमारे काउंटर मेजर्स हैं वो इन सबको जो है वो जो है नलिफाई करेंगे। ये ऐसा है कि जब आप कहीं पे भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो आप पूरी जो है उसका लेते हैं, जो जहाँ पे आपने जाना है अटैक करना है वो सारा का सारा उसकी इन्फॉर्मेशन लेके उसको कोलेट करते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि उसमें जो हाई वैल्यू टारगेट्स कौन से हैं जिससे वो टारगेट हिट करने से अगला दुश्मन जो है वो इमीडिएटली जो है वहां सरेंडर करे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए 71 की लड़ाई में क्या हुआ, हमने ढाका कैप्चर करना था और ढाका कैप्चर करने से जितना सारा हम बाकी सारी जगह छोड़ के सीधा ढाका के ऊपर गए, हमारी पैरा बटालियन भी गई वहां पे और सीधा हमने सरेंडर करवा दिया उधर। तो ये होता है आपको एक एप्रिसिएशन करके वॉर के अंदर कि आपने कौन से टारगेट सेट करने जिससे कि लड़ाई जो है जल्द खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए लड़ाई शुरू करना बहुत आसान होता है पर उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। आपके सामने है ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है।
रशिया ने उस टाइम सोचा था कि मैं सीधा जाऊंगा, ये डोनाबास रीजन वगैरह सारा लेके तो चलो खत्म। आज 3 साल से ऊपर हो गए। वहां पे इजराइल और अब ईरान का है। आप गाजा में देख लीजिए इजराइल किस तरीके से फंसा हुआ है। तो शुरू करना कोई मुश्किल नहीं है, खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। और खत्म करने के लिए पहले आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, जिसके अंदर आपको टारगेट्स जो हैं उस हिसाब से चूज करने होते हैं कि जिन टारगेट्स को आप हिट करेंगे तो इमीडिएटली जो दुश्मन है उसका जो मोराल है वो पस्त हो जाएगा और वो कहेगा जी अब तो मेरे को आप ऐसा माफी दे दीजिए, अब हम जी सीजफायर कर लेते हैं। और वही हुआ। हिंदुस्तान ने जब ये 9 टारगेट्स के अलावा जब उनके एयरफील्ड वगैरह जो टारगेट्स थे वो उसको भी हिट किया तो इमीडिएटली आपके सामने है कि डीजीएमओ, उनका पाकिस्तान के डीजीएमओ का टेलीफोन आ गया कि जी हम जी वो ये आप सीजफायर कर लीजिए। पहले वो अमेरिका को कहते रहे, अमेरिका ने कहा नहीं, आप खुद बात करिए उनके साथ, हम नहीं इंटरवीन करेंगे। तो ये चीज होती है, इसी को कहते हैं जो एप्रिसिएशन है। यहीं से पता लगता है कि आपकी जो काबिलियत क्या है। तो जैसे कि अनिल गौर का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं भिखारिस्तान है। पाकिस्तान जो है भिखारी हो चुका है और उसे हर चीज की मदद के लिए चीन के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। और अब ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि चीन ने किस तरीके से उसे अलग अलग डिफेंस सिस्टम के जरिए जो है मदद की, किस तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजी और सारी चीजों की जो मदद उनके द्वारा उसे पहुंचाई गई थी। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर लगातार बयान आ रहा है और इस मामले पर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव का भी बयान है। क्या कुछ उनका भी कहना है, सुनिए। भारत के सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने फिक्की के द्वारा आयोजित सेमिनार में ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को करने की प्रक्रिया में 21 टारगेट्स के बारे में गंभीरता के साथ विचार किया गया था, जिसमें कि 9 टारगेट्स को फाइनली सेलेक्ट किया गया। और ये जो इन टारगेट्स का जो सिलेक्शन था वो फाइनल आवर्स में किया गया। और उसके बाद भारत की सेना के द्वारा जो रिस्पांस किया गया वो बहुत ही प्रिसाइज था, बहुत ही सफल था। और उन सभी 9 टेरर टारगेट्स को हमने भारत की सेना ने सफलतापूर्वक डिस्ट्रॉय किया। और इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर मिलिट्री कार्रवाई की तो उस कार्रवाई को भी भारत ने बड़ी ही रोबस्ट तरीके से, एक नॉन एस्केलेटरी तरीके से, पाकिस्तान जिस तरीके से एस्केलेटर लेडर पे बढ़ रहा था उसी के अनुसार भारत अपना अनुपातिक प्रोपोर्शनेट रिस्पांस करते हुए पाकिस्तान के अनेक एयर बेसेस को हमने तबाह किया। और भारत की जो पूरी जो मिलिट्री कार्रवाई थी, जो पूरा मिलिट्री ऑपरेशन था, चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा हो या उसके बाद का किया गया ऑपरेशन रहा हो, वो पूरी तरीके से सफल रहा है। लेकिन अपने इस वक्तव्य में लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने इस बात को भी कहा है कि भारत के समक्ष जो सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और भविष्य में भारत को अपने जो रक्षा के लिए अपनी जो मिलिट्री की जो प्रिपेयर्डनेस है उसको लगातार और अधिक से अधिक रोबस्ट बनाने की आवश्यकता है। नई टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने की आवश्यकता है, नए सिनारियोज को एसेस करने की आवश्यकता है, जिसमें कि अब पाकिस्तान को जिस तरीके से चाइना और टर्की जैसे राष्ट्रों के द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से मदद प्रोवाइड की गई, वो भी उससे भी बहुत स्पष्ट है कि भविष्य में ये जो राष्ट्र हैं वो भारत के लिए और भी चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे में भारत को अपनी रक्षा की जो तैयारियां हैं उसको लगातार तेज करते रहने की आवश्यकता है और अधिक उसको रोबस्ट बनाने की आवश्यकता है। और जाहिर है कि ये लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह के जो रिमार्क्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सर्टेनली हमारी जो सेनाओं को एक गाइडेंस देने का कार्य करेंगे। तो जैसे कि आपने उनका भी बयान सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर जो है चीजें स्पष्ट करके कही हैं। उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा बयान था, चीन की पोल, तुर्की की पोल उन्होंने खोल दी है। बताया कि कैसे पाकिस्तान तो फेस फ्रंट पे था लेकिन उसके पीछे के जो बैकअप थे, उसके पीछे के जो आप कह सकते हैं कि लोग थे वो चीन और तुर्की था, जिसने उसे हर सहायक संभव मदद जो है दी, चाहे वो मिलिटेंट्स के जरिए हो या फिर मिलिट्री उपकरणों के जरिए हो। सारी सहायता जो है पाकिस्तान को दिया गया, पाकिस्तान को फ्रंट पर रख के उसके कंधे से बंदूक चलाने का काम जो है वो किया गया है। यानी साफ तौर पर ये बहुत बड़ा उनके बयान है। उन्होंने कह दिया है कि एक साथ सिर्फ एक यानी पाकिस्तान को ही नहीं हराया बल्कि 3 देशों के साथ ये लड़ाई थी और एक साथ 3 दुश्मनों को हराने का काम किया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुने और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।